السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کے ایک بہت ہی اہم کام پر بات کرنے والے ہیں جو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے مقصد کے ساتھ زندگی۔ آج کل ہر طرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ اپنا مقصد تلاش کرو، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع کی گہرائی میں اترا جائے اور سمجھا جائے کہ آخر یہ مقصد ہے کیا بلا۔ جی، اور یہ نوجوانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ بالکل۔ ڈاکٹر بروہی اپنی بات ایک بہت ہی طاقتور جملے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بے مقصد زندگی بھاری، الجھی ہوئی اور بے سمت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب مقصد داخل ہوتا ہے تو مشکلات بھی طاقت اور معنی دینے لگتی ہیں۔ یہ بات سننے میں تو بہت گہری لگتی ہے نا؟ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ یہ مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک بھاری بھرکم فلسفیانہ لفظ ہے یا اس کا کوئی ٹھوس عملی مطلب بھی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے ایک بہت ہی مبہم سا خیال سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بروہی کے مطابق مقصد کے 3 بہت واضح اور عملی ستون ہیں۔ اچھا۔ پہلا ہے زندگی کو ارادے سے جینا، یعنی آپ کے فیصلے عادت یا معاشرتی دباؤ کی بنیاد پر نہ ہوں، بلکہ آپ خود سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کی سمت طے کریں۔ یعنی آٹو پائلٹ پر زندگی گزارنے کی بجائے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا۔ جی بالکل۔ دوسرا ستون اسی سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے توجہ کا تعین۔ مقصد آپ کو صرف حرکت میں نہیں لاتا بلکہ ایک سیدھی سڑک دیتا ہے۔ بالکل، ایک واضح راستہ فراہم کرتا ہے، ورنہ انسان توانائی تو بہت خرچ کرتا ہے لیکن وہیں کا وہیں رہتا ہے، دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ جی۔ اور تیسرا ستون ہے اقدار پر مبنی زندگی۔ مطلب یہ کہ آپ کا طرز زندگی باہر کے شور سے نہیں، جیسے سوشل میڈیا ٹرینڈز، بلکہ آپ کے اپنے اندرونی اصولوں پر ہو۔ پہلی اور بنیادی وجہ ہے اندرونی سمت کا نہ ہونا۔ اندرونی سمت؟ جی، آج کے نوجوان معلومات کے سمندر میں ہیں لیکن ان کے پاس اپنا اندرونی کمپاس نہیں ہوتا۔ وہ اکثر یا تو ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں یا دوستوں کی نقل کرتے ہیں۔ صحیح، یا پھر اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اپنی آواز کہیں دب جاتی ہے۔ اور اسی میں ایک اور بہت دلچسپ نقطہ ہے جو ماخذ میں بیان ہوا ہے، وہ شوق اور مقصد والی بات۔ جی، اور یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں کہ شوق اور مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ شوق ایک پٹاخے کی طرح ہے، بہت روشنی، بہت شور، لیکن فوراً ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مقصد ایک دیے کی طرح ہے جو شاید کم چمکے لیکن مسلسل جلتا رہتا ہے۔ جی بالکل، مسلسل جلتا ہے اور اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ بہت سے نوجوان اپنے کسی وقتی شوق کو مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ واو، یہ پٹاخے اور دیے کی مثال تو بہترین ہے۔ اس نے تو سارا تصور ہی واضح کر دیا۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ ان سب کی جڑ ہے اور وہ ہے غیر واضح شناخت۔ جب تک ایک نوجوان کو یہی نہیں معلوم کہ وہ خود کون ہے، اس کی اصل طاقت کیا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، تب تک وہ اپنے مقصد کا تعین کر ہی نہیں سکتا نا۔ مقصد کی تلاش دراصل خود کی تلاشی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مسئلے کی جڑ تو سمجھ آ گئی، لیکن عملی زندگی میں جب کوئی یہ سفر شروع کرتا ہے تو اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، بروہی صاحب نے 5 بڑی عملی رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ہے بہت زیادہ سوچنا۔ اوور تھنکنگ؟ جی، نوجوان ایک کامل مقصد کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایک دن اچانک ان پر کوئی بڑی حقیقت کھلے گی اور اس انتظار میں وہ چھوٹے حقیقی قدم نہیں اٹھاتے۔ اور معاشرتی دباؤ بھی تو ہوتا ہوگا کہ جلدی کرو، کچھ بن کر دکھاؤ۔ یقیناً، اور یہی دوسری مشکل ہے، جلد فیصلہ کرنے کا دباؤ۔ معاشرہ، خاندان، سب یہ چاہتے ہیں کہ 20 سال کی عمر تک نوجوان کو معلوم ہو کہ اسے اگلے 50 سال کیا کرنا ہے۔ یہ تو بہت غیر حقیقی دباؤ ہے۔ جی، اور اس سے اتنا تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھبرا کر کوئی بھی راستہ چن لیتا ہے۔ اور اس دباؤ سے ایک خوف بھی تو جنم لیتا ہوگا نا؟ جی، اور وہ تیسری اور شاید سب سے بڑی مشکل ہے، غلط راستے کا خوف۔ یہ ڈر کہ کہیں میں نے غلط کیریئر نہ چن لیا ہو، یا اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، انہیں ایک طرح سے مفلوج کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ خوف فطری نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ماخوذ یہ واضح کرتا ہے کہ احتیاط آپ کو منصوبہ بندی پر اکساتی ہے، جبکہ خوف آپ کو عمل کرنے سے ہی روک دیتا ہے۔ چوتھی مشکل تو آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ ہے ہر طرف خلفشار۔
मोबाइल फोन्स, नोटिफिकेशंस। जी, ये शोर इतना ज्यादा है कि नौजवानों को अपने अंदर झांकने की फुर्सत ही नहीं मिलती। गहरी सोच के लिए खामोशी चाहिए और आजकल वो नायाब है। और आखिरी मुश्किल है रोल मॉडल्स की कमी। अब ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि इंटरनेट पर तो कामयाब लोगों की भरमार है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ब्रूही कहते हैं कि हमारे पास प्रेरणा तो बहुत है, लेकिन रहनुमाई नहीं। हम मंजिल तो देखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का कठिन रास्ता और नक्शा कोई नहीं दिखाता। ये सारी बातें सुनकर तो थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है। अगर कोई सुनने वाला खुद को इसी कश्मकश में महसूस कर रहा हो, तो वो कौन सी वाज़ेह निशानियां हैं जिनसे पता चले कि जिंदगी में मकसद की कमी है? जी, माखिज ने इसके लिए 5 बहुत वाज़ेह इशारे दिए हैं। पहली निशानी ये है कि जब आपके दिन बेमानी और एक जैसे लगने लगे, जब सुबह उठकर लगे कि आज का दिन भी कल की तरह ही गुजर जाएगा। दूसरी निशानी बहुत दिलचस्प है, जब आपकी जिंदगी में सरगर्मियां तो बहुत हों, लेकिन अंदरूनी सुकून ना हो। आप मसरूफ भी हैं, लेकिन दिन के आखिर में खालीपन का एहसास होता है। यानी ऐसा लगना कि जिंदगी खुद ब खुद चल रही है, आप उसे चला नहीं रहे। बिल्कुल। और यही तीसरी निशानी है, जिंदगी का ऑटो पायलट मोड पर होना। जब आपके फैसले हालात कर रहे हों, आप खुद नहीं। चौथी निशानी है जब किसी को अपनी असल ताकतों और सलाहियतों का इल्म ही ना हो। अगर हमें यही नहीं पता कि हम कुदरती तौर पर किस काम में अच्छे हैं, तो हम मकसद कैसे तलाश करेंगे? और आखिरी निशानी तो बहुत गहरी है, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जी, 5वीं निशानी है दूसरों की जिंदगी देखकर हसद महसूस करना। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं कि हसद उस बात का अलार्म है कि आपका अपना मकसद अभी सोया हुआ है। वाह! जब इंसान अपने रास्ते पर खुश होता है ना, तो उसे दूसरों के रास्तों से जलन नहीं होती। ये तो एक बिल्कुल नया जाविया है। यानी हसद सिर्फ एक मनफी जज्बा नहीं, बल्कि एक कंपास है जो बता रहा है कि आप अपनी जिंदगी के किसी हिस्से से गैर मुतमईन हैं। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये मुश्किलात, ये निशानियाँ, ये किसी को भी थोड़ा मायूस कर सकती हैं। तो अब उम्मीद की तरफ आते हैं। डॉक्टर ब्रूही इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता भी बताते हैं। जी बिल्कुल, और उनके हल बहुत अमली और काबिल अमल हैं। उन्होंने 5 ठोस इक़दाम तजवीज़ किए हैं। पहला है, अपनी ताकतें पहचानें। अच्छा। मकसद किसी की नकल करके नहीं मिलता, यह आपके अंदर से निकलता है। तो वक्त निकालकर ये जानें कि आप किन कामों में अच्छे हैं। और दूसरा हल था कुछ लिखने के बारे में। जी, अपना ज़ाती मिशन लिखें। ये सुनने में शायद थोड़ा बड़ा काम लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ख्यालात को कागज़ पर उतारते हैं, तो सोच में वजाहत आती है। लेकिन सिर्फ एक बड़ा मिशन लिख लेना तो काफी नहीं, उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? यही तीसरा हल है। मकसद पर मबनी छोटे हदफ मुकर्रर करें। अपने बड़े मिशन को रोजाना या हफ्तावार अहदाफ में तकसीम करें। इस तरह मकसद सिर्फ एक दूर का ख्वाब नहीं रहता, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और आजकल के खुलफिशार के दौर में अपनी तवानाई बचाना भी तो एक चैलेंज है। बिल्कुल। चौथा हल इसी बारे में है। गैर जरूरी चीजों को नहीं कहना सीखें। अपनी जिंदगी से वो तमाम सरगर्मियां और आदतें निकाल दें जो आपकी तवानाई चूस लेती हैं, लेकिन आपके मकसद में कोई मदद नहीं करती। सही। और 5वां हल सबसे गहरा है। गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालें। रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट खामोशी में गुजारें, बगैर फोन के, बगैर शोर के। ब्रूही साहब कहते हैं कि शोर में दिमाग उलझता है, लेकिन खामोशी में मकसद खुद आप पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो इस सारे अमल से, इन तमाम बातों से हमें क्या बड़े असबाक मिलते हैं? इस गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? हासिल गुफ्तगू बहुत मुतासिर कुन है। पहला सबक यह है कि मकसद कमजोर इंसान को भी ताकतवर बना देता है। जब इंसान के पास जीने की कोई वजह होती है, तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेता है। दूसरा सबक है कि मकसद 80% उलझन खत्म कर देता है। जब आपको अपनी मंजिल मालूम हो ना, तो रास्ते के छोटे मोटे फैसले करना बहुत आसान हो जाता है। और ये ख्याल भी बहुत हौसला अफजा है कि मकसद कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। जी, ये तीसरा सबक है। मकसद रोज का फैसला है, उम्र कैद नहीं। आप वक्त और तजुर्बे के साथ अपने मकसद को बेहतर बना सकते हैं। चौथा सबक है कि मकसद आपको मुनफरिद बनाता है, यह आपकी अपनी पहचान है। और 5वां सबक, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो ये है कि मकसद दर्द को ताकत बना देता है। दर्द को ताकत? जी, जब जिंदगी में कोई तकलीफ आती है,
तो बामकसद इंसान के लिए वो सिर्फ एक वाकया नहीं होता, बल्कि एक सबक बन जाता है जो उसे मजीद मजबूत करता है। ये तो इनफरादी सतह की बात हुई। डॉक्टर ब्रूही इस इनफरादी मकसद को बड़ी तस्वीर यानी कौम और माशरे से कैसे जोड़ते हैं? यहाँ उनकी बसीरत बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि कौमें तब मजबूत होती हैं जब उनके अफराद बामकसद हों। जब आबादी की अक्सरियत सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए जी रही हो, तो वो कौम इज्तिमाई तौर पर तरक्की करती है। और फिक्री तौर पर भी। जी, दूसरा नुक्ता यही है कि मकसद फिक्री इस्तेहकाम लाता है। जब नौजवानों के पास एक मुस्बत मकसद होता है तो वो मनफी नजरियात और फिक्री उलझनों से महफूज रहते हैं। यानी मुस्तकबिल उन्हीं नौजवानों का है जो मकसद के साथ जीते हैं। बिल्कुल, बुरोई साहब का यही आखिरी नुक्ता है कि मुस्तकबिल बामकसद नौजवानों का है। यही वो लोग हैं जो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते बल्कि नए रुझानात बनाते हैं, वही तारीख रकम करते हैं। आखिर में डॉक्टर बरूही नौजवानों को क्या हतमी पैगाम देते हैं? उनके आखिरी अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। वो कहते हैं, भीड़ का हिस्सा मत बनो, मकसद के साथ चलो। एक बामकसद जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ये ताकतवर, पुरअमन और नाकाबिले फरामोश होती है। माने का इंतखाब करो, दुनिया तुम्हारी वजाहत की पैरवी करेगी। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मकसद कोई दूर आसमान में चमकता सितारा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी कुतुबनुमा है जिसे रोजाना देखकर सफर करना पड़ता है। ये एक इंतखाब है जो जिंदगी के हर कदम को मानी देता है। और इस पर मजीद गौर करने के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। माखिज हमें अपना जाती मिशन लिखने का कहता है। क्या हो अगर पहला कदम लिखना नहीं बल्कि मिटाना हो? मिटाना? जी, अपने जहन से दूसरों की वो एक तवक्को मिटाना जो हकीकत में हमारी अपनी नहीं है बल्कि हम पर मुसल्लत की गई है। शायद असल वजाहत इसी मिटाने के अमल से शुरू होती है। हमारे साथ इस गहरी गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।